تاریخ میں جب ہم بائبل مقدس کی نبوتوں کی بات کرتے ہیں، بائبل مقدس کی پیشین گوئیوں کی بات کرتے ہیں، تو پیشین گوئیاں جو ہیں وہ دو طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ جو شارٹ ٹرم پروفیسیز ہیں، جو تھوڑے عرصے میں تکمیل تک پہنچتی ہیں، اور ایک قسم پیشین گوئیوں کی وہ ہے جو بار بار تکمیل پاتی ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسی بے شمار پیشین گوئیاں بائبل میں مندرج ہیں، اور آج کے تعلق سے جب ہم خداوند کے پاک کلام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اپنے مضمون کے ایک نقطے پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ نقطہ ہے ہمارا مسیح یسوع کے دوبارہ سے آسمان سے زمین پر واپس آنا، آمد ثانی کا ہونا۔ اور آمد ثانی کے سلسلے میں پچھلے دو اتوار سے میں مختلف پہلوؤں پر بات کر رہا ہوں، اور آج آمد ثانی کے تعلق سے اس نقطے پر آخری پیغام ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصے میں رسولوں کے عقیدے کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہم اس میں ڈاکٹرائنز کو سمجھتے ہیں، اس کو عقائد کو اس عقیدے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سو ہم ایمان رکھتے ہیں خدا باپ پر، جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح پر، جو کماری مریم سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، پنتیوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، جہاں باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ ہم جب پیشین گوئیوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں جب ہم یرمیہ نبی کے صحیفے کو دیکھتے ہیں، مقدس یرمیہ نبی 7ویں صدی کے آخر اور 6ٹھی صدی کے ابتدائی حصے میں مسیح کی پیدائش سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ 700 سال مسیح کی پیدائش سے پہلے کے آخری حصے میں، اور 600 سال کے پہلے حصے میں وہ یروشلم یا یہودا کی سلطنت میں نبی ہونے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے ان دو قبیلوں کی سلطنت کو، حکومت کو، اپنی نبوتوں میں یہ بتایا کہ اس وقت کی بڑی حکومت، عالمگیر حکومت، جو تمام دنیا میں طاقتور ترین حکومت تھی، بابل کی غلامی میں وہ جائیں گے۔ اس سے پہلے جو 10 قبیلے ہیں، وہ بابل سے بھی پہلے کی ایک اور طاقتور حکومت اسور کی غلامی میں جا چکے تھے۔ اب یہ 2 قبیلے باقی تھے اس ساری سرزمین میں، اسرائیل کے نام پر، یہودا کے نام پر، اور ان قبیلوں کو بھی نبوت یہ تھی کہ یہ غلام ہو کر، اسیر ہو کر بابل چلے جائیں گے۔ اب تک بابل نے اسور پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اسور کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، بابل کی باج گزار ہو چکی تھی، اور بابل جو ہے آج کے امریکہ کی طرح جو ہے وہ سب سے طاقتور حکومت تھی، اور بابل کا یہ ملک آج کے عراق کے علاقے میں تھا۔
सो ये नबूवत जो यहां आज के मतन में पढ़ी गई, इसके कई हिस्से हैं। इसकी पहली जो आयत हैं, तीसरी आयत तक, वो उस बहाली की बात करती हैं जो 538 साल मसीह की पैदाइश से पहले हो गई, कि खुदा असीरी में गए हुए लोगों को वापस लाएगा। और खुदा 538 साल मसीह की पैदाइश से पहले ईरान के बादशाह होरस के जरिए से, जो असूर और बाबल के बाद तीसरी ताकतवर हुकूमत थी सियासी तौर पर इस दुनिया की, खुदा होरस के जरिए से, जिसके बारे में उसने मसीह की पैदाइश से 800 साल पहले यसाया नबी की मार्फत नबूवत की थी कि होरस मेरा चरवाहा है, वो मेरे लिए काम करेगा। और खुदा होरस को इस्तेमाल करते हुए बाबल पर, होरस जो है उसने चढ़ाई की, बाबल को फतह कर लिया, और यूं पूरी दुनिया में फारसी सल्तनत, ईरानी सल्तनत जो है वो बर्पा हुई। इस ईरानी सल्तनत ने, फारसी सल्तनत ने बहुत से साल हुकूमत की। इस दौर में यहूदी वापस अपने मुल्क में आए। इसी दौर में हम अज़रा और नेहमिया की किताबों को देखते हैं। इसी दौर में मुकद्दसा आस्तर मलका की किताब को भी हम देखते हैं, वो लिखी गई। यहूदी वापस आए और वापस आकर इस नबूवत को खुदावंद ने पूरा किया कि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को माकूफ कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। ये नबूवत लॉन्ग टर्म प्रोफेसी भी है। इस नबूवत को 2 दफा हमने तारीख में पूरा होते हुए देखा है। और 538 साल मसीह की पैदाइश के बाद यहूदी जब मुल्क में आ गए, मुल्क में उसके बाद वो असीर नहीं हुए, लेकिन 70 मसीही में वो दोबारा से जो है वो अपने मुल्क से निकाल दिए गए और मुख्तलिफ मुल्कों में बखेर दिए गए। और ये दौर था रोमियों का दौर। बाबल की हुकूमत, उसके बाद फारिस की हुकूमत, ईरान की हुकूमत, और तीसरी हुकूमत यूनान की हुकूमत थी। यूनानी दौर में हम मलाकी के बाद की सारी तारीखी किताबों को देखते हैं, जिनमें मुकाबीन की किताब जो कैथोलिक बाइबल में मौजूद है और अपाक्रिफा की किताब कहलाती है, वो हमें वहां मिलती है। सो वहां पर हम तारीख को देखते हैं, यूनानी दौर को देखते हैं। यूनानी दौर के बाद जो चौथा दौर आता है वो है रोम का दौर, रोम की सल्तनत। और अगर आप दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर की उस मूरत को देखें तो वो हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताती है इस दुनिया का, बाबल से शुरू करके और फिर यूरोप की 10 हुकूमतों तक जो खात्मा है पॉलिटिकल हुकूमतों के स्ट्रक्चर का इस दुनिया में। उस पर कभी और बात करेंगे यकीनन। लेकिन ये याद रखें कि दानियल की किताब पुराने अहदनामे का मुकाशफा है। वहां इसराइल के ताल्लुक से नबूवतें हमें मिलती हैं, इसराइल के ताल्लुक से हमें तमाम चीजों को हम देखते हैं। लेकिन नए अहदनामे के मुकाशफा में हम कलीसिया की निस्बत से बातों को होते हुआ देखते हैं। सो इस लिहाज से जब रोमी हुकूमत बर्पा हुई तो यीशु अल मसीह का दौर आ गया, और रोमी हुकूमत के दौर में यीशु अल मसीह पैदा हुए। 33 साल उन्होंने जमीन पर जिंदगी बसर की,
और 33 साल 40 दिनों के बाद वो आसमान पर सऊद फरमा गए। और जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा ताकि मैं तुम्हें ले लूं। रोमी दौर के इस दौर में जब यीशु अल मसीह पैदा हुए, यीशु अल मसीह ने जो है वो जिंदगी बसर की, उसके कुछ सालों के बाद तकरीबन मैं इसको यूं कहूं कि अगर 40 साल के अंदर अंदर यीशु अल मसीह की पेशनगोई पूरी हुई, जिसमें उसने कहा ऐ यरूशलेम तुझे घेर लेंगे और तेरे बच्चों को जमीन पर पटक देंगे। 70 मसीही में रोमी जर्नैल टाइटस ने, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, जो बाद में चलकर रोम का कैसर भी बना, रोम का बादशाह भी बना, उसने घेर लिया यरूशलेम को चारों तरफ से। और यरूशलेम की गलियों में खून बहा। यहूदी लोगों को इतनी तादाद में सलीब दिया गया कि सलीब गाड़ने के लिए यरूशलेम के गिरदोनुमा में जगह बाकी नहीं रही। यरूशलेम की गलियां खून से रंग गई, उसकी नालियां जो हैं वो खून से भर गई और खून बहने लगा नालियों में। हामिल औरतों के बच्चे पेट चीर कर बच्चों को निकालकर पटक दिया गया गलियों में, जहां जहां भी मिले, और बिखर गए यहूदी जो है वो अपनी जान बचाने के लिए यरूशलेम को छोड़ गए, इस्राएल को छोड़ गए। और तकरीबन 2000 साल तक वो दर बदर भटकते रहे मुख्तलिफ मुल्कों में। लेकिन यही नबूवत जो यिर्मयाह नबी के सहीफे में 30वें बाब की पहली 3 आयत में लिखी है, वो 1948 में पूरी हुई और पूरी दुनिया से यहूदी जो हैं वापस यरूशलेम पहुंचे, वापस इस्राएल पहुंचे। 1948 से लेकर अब तक खुदा का कौल मुबारक पूरा हो रहा है कि मैं यहूदा की असीरी को माकूफ कराऊंगा, अपनी कौम इस्राएल और यहूदा की असीरी को माकूफ कराऊंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। इस हकीकत को ना कोई तब्दील कर सका है और ना तब्दील कर सकता है, क्योंकि ये जिंदा खुदा के पाक कलाम की हकीकत है। खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी भी पूरा हुए बगैर रह नहीं सकते। इसलिए जब यीशु अल मसीह ने फरमाया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी, तो इसका मतलब यह है कि यीशु अल मसीह ने अगर कहा है कि मैं वापस आऊंगा, तो वो वापस आएगा। और उसका वापस आना जो है वो खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक जरूर होगा। हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि यीशु अल मसीह की आमद सानी में एक हिस्सा रैप्चर है और एक हिस्सा रेवलेशन है। और इसको जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के तनाजुर में, तो बहुत सी आरा हैं इस सिलसिले में। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद सानी में पहला हिस्सा रैप्चर होगा, फिर दूसरा हिस्सा रेवलेशन होगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो है वो दुख का दौर होगा, ट्रिबुलेशन पीरियड होगा। और इस ट्रिबुलेशन पीरियड के मुताबिक इस दुखों के अयाम के दौरान मुख्तलिफ राय है लोगों की। और एक तबका ये कहता है कि पूरे की पूरी कलीसिया इस दुखों के दौर में से गुजरेगी। दूसरे एक और तबका है जो ये कहता है कि तमाम की तमाम कलीसिया इस दुखों के
दौर के 3.5 सालों से पहले उठा ली जाएगी, जिसे रैप्चर कहा जाता है। और तीसरा एक और ग्रोह ऐसा है जो ये कहता है कि दुखों से पेशतर वो लोग जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे होंगे वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो लोग 5 सुस्त कुंवारियों की मानद इंतजार नहीं कर सके होंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे और वो चर्च का हिस्सा आजमाइश के दौर से गुजरेगा। और उसके लिए डेफिनेटली तीनों ही तबके जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर कलाम मुकद्दस के हवाला जात देते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, आपके साथ मिलकर इस बात को देखना चाहता हूं। मेहरबानी से अगर किसी के पास मोबाइल फोन में बाइबल मौजूद है ताकि जल्दी वो हवाला जात निकाल सकें, तो वो इन हवाला जात को पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। मीडिया टीम जो है वो माइक जो है वो तैयार करे ताकि वायरलेस माइक उन तक पहुंचाया जाए। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 12वीं ता 13वीं आयत हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक नुक्ता ऐसा मिलता है जो हमें वाज़े कर देगा यीशु अल मसीह की कलीसिया के बारे में। आया वो आजमाइश के दौर से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, इसके बारे में आगाही पाक कलाम जो है वो देगा। जी कोई है जी जो तेजी के साथ निकाल सकता हो और पढ़ सकता हो? पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 12वीं ता 13वीं आयत। जी खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है 12वीं आयत, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हों ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम हों ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और शुक्रिया। यहां जब हम देखते हैं तो कलीसिया मसीह का बदन है और इसमें कोई डिवीजन नहीं है, इसकी कोई टुकड़े नहीं किए गए, चाहे रूमी हो, यूनानी हो, यहूदी हो, ये तमाम के तमाम को एक ही बपतिस्मा के वसीले से एक बदन बनाया गया है। और इसमें कोई जो है वो शक की गुंजाइश नहीं है। आज वो कलीसियाएं जो हर आने वाले मेंबर को दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा बपतिस्मा भी देने के लिए तैयार रहते हैं, ये उनके लिए भी एक उनके मुंह बंद करवाने के लिए काफी है कि बपतिस्मा सिर्फ एक है, एक ही खुदा, एक ही खुदावंद और एक ही बपतिस्मा है। चाहे वो किसी ने बचपन में ले लिया या बड़े होकर ले लिया, बपतिस्मा एक ही है। इसलिए वो मसीही जो मुख्तलिफ तालीमात के झोंकों में उछलते फिरते हैं, जो समझते हैं कि निजात के लिए दूसरा तीसरा बपतिस्मा जरूरी है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि निजात बपतिस्मे से नहीं होती। निजात के लिए मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। बपतिस्मा निजात की कुंजी नहीं है, बादशाही में दाखिले की कुंजी नहीं है। अगर बपतिस्मा मसीह की बादशाही में दाखिले की कुंजी होता तो सलीब का डाकू कभी बगैर बपतिस्मे के बादशाही में शामिल ना होता। मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर बपतिस्मा उस इतना जरूरी होता कि वो बादशाही में दाखिले की कुंजी होता तो मसीह यकीनन कहते पहले जाकर बपतिस्मा ले, फिर जाकर मेरे साथ बादशाही में शरीक होना। बपतिस्मा कलीसिया में शमूलियत का निशान है, ये याद रखिए।
वो बचपन में देता है, कोई कलीसिया कोई देती है, या बड़े होकर दिया जाता है, इसमें किसी तरह भी कोई वाज़ेह तालीम बाइबल में मौजूद नहीं है कि हम सिर्फ छोटे बच्चों को बपतिस्मा दें या सिर्फ बड़ों को बपतिस्मा दिया जाए। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये याद रखें कि इसी बपतिस्मे के वसीले से जो भी शख्स कलीसिया में शमूलियत पाता है, वो कलीसिया यानी मसीह के बदन का हिस्सा बन जाता है, और मसीह के बदन के टुकड़े करने की मसीह किसी को इजाजत नहीं देता, तो वो खुद कैसे इसके टुकड़े करेगा। इसलिए आधी कलीसिया का छोड़ दिया जाना, आधी कलीसिया का उठा लिया जाना, इसकी तालीम बाइबल के मुताबिक हमें नहीं मिलती। हम यूहन्ना 3 बाब की 3 से 7 आयत में ये देखते हैं कि नई पैदाइश के तजर्बे से बादशाही में दाखिले का परवाना मिलता है, और नई पैदाइश मसीह पर ईमान लाने से मुमकिन होती है। मेरे अजीजों, यहां मसीह के बदन के टुकड़े ऐसे नहीं होंगे कि कुछ लोग कब्रों में सोए रहें और कुछ जिंदा कर दिए जाएं, या जिंदा लोगों में से कुछ उठा लिए जाएं जलाल के लिए और कुछ जो हैं वो आजमाइश के दौर के लिए छोड़ दिए जाएं। यहां ये याद रखें कि अगर मैं दूसरी तरफ भी बात करूंगा, अगर कलीसिया जो है या चर्च जो है वो आजमाइश के दौर में से गुजरेगा या दुखों के दौर में से गुजरेगा, तो फिर मसीह कभी ये ना कहता कि इब्ने आदम के लिए कलीसिया को इंतजार करने की जरूरत है। फिर यकीनन बाइबल में लिखा होता कि हमें दुखों के दौर के लिए इंतजार करने की जरूरत है, फिर वी शुड वेट फॉर द ट्रिबुलेशन पीरियड। लेकिन ये याद रखें, यिर्मयाह का 30वां बाब और 7वीं आयत ये कहती है, अफसोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं, वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। मतलब क्या कि ये ट्रिबुलेशन पीरियड, ये दुखों का दौर जिसके बारे में बाइबल बात करती है कि 3.5 साल तक वो जारी रहेगा, ये दुखों का दौर इस्राएल के लिए है, बनी याकूब के लिए है, जिसका नाम इस्राएल खुदा ने रखा, बनी इस्राएल के लिए है। और खुदा जो है वो यकीनन इस दौर को याकूब की मुसीबत का दौर कहता है। और याद रखें, बगैर सबूत के मैं बात नहीं कर रहा, मुकाशफा उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत कहती है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। और ये डायरेक्टली कलीसिया को पैगाम है खुदा का। फिलदल्फिया की कलीसिया के नाम खत के इस हिस्से में खुदा वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि खुदा कलीसिया को इस आजमाइश के, इन दुखों के दौर से बाहर रखेगा, वो इन पर आने नहीं देगा। और मेरे अजीजों, अगर हम मुकाशफा की किताब के तारीखी ऑर्डर को बात देखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखें, तो याद रखिए कि 4थे चैप्टर के बाद, मुकाशफा की किताब के 4थे बाब के बाद हमें कलीसिया का कोई जिक्र मुकाशफा की किताब में नहीं मिलता। उसके बाद जो है वो 19वें बाब में उसका जिक्र मिलता है, जहां वो दुल्हा के साथ वापस आने की बात उसकी होती है। दुल्हा के साथ जो है आसमान से उतरने की बात होती है। इसलिए याद रखिएगा, 4थे बाब से 19वें बाब तक सिर्फ दुनिया के रहने वालों की मुसीबतों की बात है।
मुकाशवा की किताब में चौथे बाब तक कलीसिया का जिक्र मौजूद है, उसके बाद कलीसिया का जिक्र मौजूद नहीं है मुकाशवा की किताब में। 19वें बाब तक हमें सिर्फ मुसीबतों और दुखों का दौर नजर आता है मुकाशवा की किताब में, और ये सब दुनिया के रहने वालों के लिए है। इसलिए यीशु अल मसीह की आमद सानी में हकीकत ये है कि कलीसिया दुखों के दौर में से नहीं गुजरेगी। और ये मसीह यीशु की आमद सानी 4 वजूहात हैं उसकी कि क्यों होगी। यीशु अल मसीह सिर्फ ये नहीं कर रहा कि मैंने कह दिया अब सैर करने के लिए दोबारा मेरा दिल कर रहा है दुनिया में जाने का, इसलिए मैं जाऊंगा ताकि मैं देखूं क्या हो रहा है। यीशु अल मसीह की जिंदगी का पहली आमद में भी एक एक लम्हा प्लान शुदा था। उसका मकसद था, पामकसद उसकी पहली आमद भी थी। उसने बेमकसद कोई लम्हा दुनिया में जाया नहीं किया। इसलिए ये याद रखिए कि ये जिम्मेदारी मसीहों की भी है कि वो मसीह पर ईमान लाने के बाद अपनी जिंदगी को बामकसद तरीके से गुजारें। उनकी जिंदगी खुदा ने बेमकसद इस दुनिया में नहीं रखी। उसे बहुत जिम्मेदारी के साथ मसीह की दूसरी आमद तक उन्हें गुजारने की जरूरत है। खुदा उनको जिम्मेदारियां देकर इस दुनिया से यीशु अल मसीह गया है, और अगर वो इधर उधर अपने वक्त को जाया करेंगे तो उन लम्हों का हिसाब उनको देना होगा। लेकिन यीशु अल मसीह की दूसरी आमद भी बामकसद है। उसका पहला मकसद यह है कि वो अपने लोगों को यानी ईमानदारों को इस दुनिया से ले जाए। वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि वापस आकर दोबारा तुम्हें ले लूं। और मेरे अजीजों, इस वापस लेने का मतलब यह है कि वो जिन्होंने यीशु अल मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद अपनी जिंदगी को उसके असूलों के मुताबिक बसर किया है, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारी है, वो यीशु अल मसीह के साथ उसके जलाल को शेयर करें। क्योंकि यीशु अल मसीह अपने लोगों को अपने जलाल में शामिल, बादशाही में शामिल करेगा। इसलिए उसके आने का एक मकसद यह है कि वो ईमानदारों को इस दुनिया में से ले जाए ताकि वो अपनी बादशाही में, अपने जलाल में उनको शामिल करे। दूसरा उसके आने का मकसद यह है कि वो ईमानदारों को उनकी जिंदगी के इवज जो उन्होंने इस दुनिया में यीशु अल मसीह को जलाल देते हुए गुजारी है, उसका अज्र उन्हें दे। कलाम मुकद्दस में याद रखिए कि जब हम करंथियों की किताब 5वां बाब 8वीं से 10वीं आयत अगर कोई पढ़ सके मेरे लिए, हम उसको देखते हैं तो यहां साफ तौर पर लिखा है कि वो ईमानदारों को इनामात देने के लिए आएगा। जी कोई पढ़ेगा जी? जरा जल्दी कीजिएगा जी। दूसरा करंथियों 5वां बाब 8वीं ता 10वीं आयत। अयूब साहब आप पढ़ दीजिए जरा। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हों, खा जिला वतन उसको खुश करे। 8वीं से 10वीं आयत। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे। और इसके बारे में आप वाइज की किताब के आखिरी बाब में भी पढ़ सकते हैं कि हमें खुदा के हुजूर जवाबदेही करनी है अपने अच्छे और बुरे कामों के लिए।
कलीसिया की भी अदालत होगी। कलीसिया को भी उसकी अच्छाई के बदले में मुख्तलिफ इनामात से उनको नवाजा जाएगा और ये रिवार्ड देने के लिए वो अपने ईमानदारों को लेने के लिए आने वाला है। फिर तीसरा मकसद उसके आने का ये होगा कि वो अपनी सॉवरेनिटी को जाहिर करे, अपने कादरे मुतलिक होने को जाहिर करे, क्योंकि जिस तरह उसका बाप कादरे मुतलिक है उसी तरह से वो भी कादरे मुतलिक है। और कादरे मुतलिक होते हुए उसका पाकलाम ये फरमाता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है। यूहन्ना की इंजील, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। अगली आयत 25वीं आयत पर गौर कीजिएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि वो अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताज्जुब न करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। मेरे अजीजों, यहां बड़ा वाज़ेह मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग ये एतराज करते हैं कि यीशु अल मसीह ने कभी भी खुदा को अपना बाप नहीं कहा, लेकिन पाक कलाम के बारे में ऐसे नेगेटिव तासरात बयान करने वालों को मैं अकल के अंधे कहता हूं। उन्होंने बाइबल को पढ़ा ही नहीं कभी भी। बाइबल मुकद्दस में 5वें बाब की 18वीं आयत यह बयान करती है, इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना सिर्फ फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता है बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। ऐसे लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं बाइबल को, इसलिए ये जाकिर नालायक जैसे लोगों की बातें सुनकर परेशान ना हुआ करें। वो सिर्फ झूठों के बाप के जेरे असर रहकर अपनी सी कहते हैं, बाइबल को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं करते। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के इख्तियार की बात करती है और बाइबल मुकद्दस का इख्तियार यह है यीशु मसीह का कि उसकी आवाज पर मुर्दे कब्रों में से निकलेंगे और जब निकलेंगे तो वो उनका मकसद किसी और मजहब का इत्बा नहीं है, किसी और मजहब को कबूल करना नहीं है। यीशु अल मसीह किसी के हाथ पर चाहे वो कोई भी नबी हो बैत करने के लिए दोबारा नहीं आने वाले। जिस तरह से हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो अपनी सी बातें कहते हैं, यीशु अल मसीह का आना उसका एक मकसद है और वो मकसद है मुर्दों को जिंदा करना और उनकी अदालत करना, क्योंकि खुदा ने अदालत करने का काम अपने बेटे के सुपुर्द किया है। और जिंदा करने वाला खालिक है, मखलूक नहीं है। जिंदा करने वाला जिंदा होने वालों से छोटा नहीं है,
वो जिंदा होने वालों से कहीं बड़ा है, और जिंदा होने वाले उसकी राह देखते हैं। ये याद रखिए, मसीह की शख्सियत को अंडर एस्टिमेट करना ये गुनाह है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसे उसने भेजा है उसकी इज्जत नहीं करता। और यीशु अल मसीह ने साफ कहा, जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता और उठाता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। इसका मतलब यह है कि बेटे के पास इख्तियार है जिसे वो वापस दुनिया पर जाहिर करने के लिए आने वाला है। मुझे और आपको किसी तरह किसी शक में नहीं पड़ना। याद रखिए कि अगर कोई शख्स पाक कलाम की नबूवतों को तालिब इल्म की नजर से, तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ना शुरू करे गौर से, तो खुदा के पाक कलाम की नबूवतें बहुत वाज़ेह हैं। कलीसिया को हरदम शुक्रगुजार होने की जरूरत है कि मसीह उनको दुखों में नहीं छोड़ेगा। खुदावंद यीशु अल मसीह ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। उसने अपने बाद का सारा दौर भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और बिल्कुल वाज़ेह हों इस बात में कि यीशु अल मसीह हमें लेने आने वाला है। हमें दिन ही दिन में काम करना है। यीशु मसीह ने फरमाया कि वो रात आती है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। इसलिए ये मत इंतजार करें, चलो कल मसीह को कबूल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज का दिन निजात का दिन है। तौबा करने के लिए अगला लम्हा आप नहीं जानते कि आपकी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा। इसलिए खुदावंद का अदना खादम होते हुए, खुदा के पाक कलाम का तालिब इल्म होते हुए, मैं आज चाहता हूं कि मैं ऑल्टर कॉल दूं। जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, नई पैदाइश का तजर्बा नहीं पाया, मैं उसे दावत देता हूं यीशु अल मसीह के पास आने की, यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की। पाक कलाम के मुताबिक उसमें जिंदगी है और वही जिंदगी आदमियों का नूर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में गुनाह के अंधेरे छट जाएं, गुनाह के अंधेरों से आप निकल आएं, तो फिर जरूरत इस बात की है कि आप मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें।